the name of Allah, the most beneficent and the most gracious. I am Amreen Farooqi from City High School and I belong to City Campus. My dear parents and students, Assalamu alaikum. How are you? I hope that you will be safe and sound at your home by the grace of Almighty Allah. Administration of City High School understands the anxiety and concern of parents about their students' studies, about their future. They are very much worried about this prevailing situation of pandemic around the world. So the parents as well as students are not at ease. City High School administration understands it and they have arranged and recorded some lectures of our very diligent teachers to make the students ease at home so that they may learn something at home. They may not waste their time. In this regard, we will feel pleasure to guide and facilitate you. We are here and I am also here to guide the students of especially Montessori classes who are at home and parents are really worried कि बच्चे जो हैं वो घर में कुछ भी नहीं कर रहे. Sometimes I received calls from the parents, mothers are worried कि बच्चे तो हमारे घर में कंट्रोल में ही नहीं हैं. So what should we do to realize this problem? We have decided कि हम आपके साथ जो हमने थोड़ा सा बच्चों के लिए समर पैक्स डिज़ाइन किए थे, उनकी एक्टिविटीज़ के लिए कुछ वर्कशीट्स हमने डिज़ाइन की हैं, उसके बारे में आपको गाइड कर दिया जाए और जो आप लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उसके बारे में कुछ डिस्कस कर लिया जाए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट प्री नर्सरी. आई हैव समर पैक ऑफ प्री नर्सरी फर्स्ट ऑफ ऑल हियर. On the first page of this pack, there are contact numbers of our VPs. You can contact them at these contact numbers if there is any ambiguity regarding any homework. Then the homework start. There are some activities, very easy activities to join the dots and color. And then this is really very difficult for the parents to handle the students and make them write on these dots, especially of students of pre-nursery. They are not writing at home, they are not in the control of their parents. तो आपने बच्चों को simply guide करना है how they are going to trace these letters. They will start from the dot, make a circle and then complete that letter. And the other thing is this, they don't know the sounds of these letters. We are starting our pre-nursery with small letters. Small letters are just spoken through their sounds. तो sounds के साथ बच्चों ने ये small letters पढ़ने हैं. Parents को, especially mothers को हम यहाँ guide करेंगे कि उन्होंने sounds किस तरह बच्चों को बतानी है. I have written some letters on board. I will guide you how to pronounce these letters. First letter, this is, ये कैपिटल लेटर नहीं है इसलिए हम इसका नेम नहीं बोलेंगे. A, B, C नहीं कहेंगे, हम इनकी साउंड्स बताएंगे. दिस इज ए. व्हाट इज दिस? ए. ए. नेक्स्ट वन इज ब. 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 व्हाट कम्स आफ्टर ब? इट इज ख. 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 Kh, after kh there is letter d. The sound of this letter is d. D. Then comes a. A. You will make the flap of your mouth and then you will pronounce a. After a there comes this is. And what is this? This is g. G. ये बिल्कुल आपने हलक से आवाज निकालनी है अपनी g. Then comes, बहुत लाइट सी साउंड है इसकी. This is letter, this is sound E.
शॉर्ट साउंड होगी इसकी, इ। ज के साथ आपने रुकना है, इ, इ। देन कम्स ज, ज, ज। आफ्टर ज देयर कम्स क, क। क के बाद आता है ल, l. Your tongue will touch the upper cavity of mouth. L, l. And the last one is You will close your mouth and then you will pronounce ये टोटल कंप्लीट लेटर्स नहीं है, ये हमारा मिड टर्म का सिलेबस है। तो जो पेरेंट्स वरिड हैं बच्चों के बारे में कि वो नहीं कर रहे, या जिन पेरेंट्स को साउंड्स के बारे में आइडिया नहीं है, ये उनको काफ़ी हेल्प आउट करेगा। इन द सेम वे ये लेटर्स कंप्लीट हो जाएंगे। देन देयर इज अ वर्कशीट, सर्कल द करेक्ट साउंड। स्टूडेंट्स नो विच इज दिस पिक्चर, वो आपको बताएंगे दिस इज एप्पल एंड एप्पल स्टार्ट्स विद विच साउंड। देयर आर 4 ऑप्शंस गिवन हियर, दे विल सर्कल एस। In the same way they will complete the whole page. And then there is a worksheet, cut out circles from red, blue and green paper and stick them on the correct string with glue. ये colors mention किए गए हैं to identify the colors। तो बच्चे रेड कलर को आइडेंटिफाई करेंगे, ग्रीन और ब्लू को, और उनके कटआउट्स पेपर से उन्हीं कलर के ग्लेस पेपर्स लेकर बच्चों के आपने सर्कल कट आउट कर देने हैं और उनको हेल्प आउट करना है यहाँ पेस्ट करने के लिए। Then there is a worksheet, tick the glass which has many crayons and color the glass which has few crayons. This is the concept basically, few and many. आपने बच्चों को गाइड करना है कि few कौन सी चीज़ें होती हैं और many हम किसको कहेंगे, ज़्यादा चीज़ों को many कहेंगे, कम चीज़ों को few कहेंगे। और few वाले जो ग्लास है उसको बच्चों ने करना है, टिक कर देना है, और कलर द ग्लास विच हैज़ few crayons उसको कलर करना है, और many वाले को टिक करना है। हाँ जी। देन मैथ्स की नेक्स्ट वर्कशीट है, ट्रेस एंड कलर दीज ऑब्जेक्ट। सिंपल कलरिंग है और ट्रेसिंग। बेसिकली प्री नर्सरी में हम बच्चों को सिखा रहे हैं ट्रेसिंग, और आपने उनके बच्चों के हैंड्स मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ बेशक घर पे करवाइए, उनको स्पॉन्ज एक्टिविटी करवाइए, प्योर सम वाटर इन द टब एंड आस्क देम टू pour द स्पंज एंड देन स्क्वीज इट इन द अदर टब। ये बच्चों के हैंड स्ट्रॉन्ग को मसल करेगा, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। देन आप उनसे फिर राइटिंग प्रैक्टिस करवाइएगा, इससे बच्चे थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे। अगर आप कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़ घर पे परफॉर्म करवाएंगे, बच्चे स्टडीज़ में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे, जो आपको प्रॉब्लम है कि बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। मैथ्स की एक्टिविटीज़ हैं, नंबर्स हैं, बच्चों को 1 to 5 आइडेंटिफिकेशन करवाई गई है, उससे रेलिवेंट है काउंट एंड मैच द नंबर्स विद द ऑब्जेक्ट्स वन हैज़ बीन डन फॉर यू। बच्चे काउंटिंग करेंगे सिंपल, और उसके साथ वो मैच कर देंगे। देन उर्दू वर्कशीट स्टार्ट्स, तस्वीर में बुनियादी रंग भरिए। सिंपल नीला, पीला, लाल, वही जो हमने इंग्लिश में किए थे, रेड और येलो एंड ब्लू, वही आपकी उर्दू में कलर्स हैं, बेसिक कलर्स हैं ये आपने बच्चों को इन कलर्स की आइडेंटिफिकेशन करवा देनी है। देन लिखिए एंड रंग भरिए, सेम। ये सिंपल सी एक्टिविटीज़ हैं, बच्चे इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे अगर आप उनके साथ खुद इन्वॉल्व होकर उनको एक्टिविटीज़ करवाएंगे, देन दे विल टेक इंटरेस्ट। नेक्स्ट आवर स्टार्ट क्लास है जी नर्सरी। इन द सेम वे फर्स्ट पेज पर कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा है ये कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स का है, यानी कैपिटल लेटर्स जो है बच्चों को हमने करवाए हैं वो उन्हीं के साउंड्स के साथ मैचिंग करेंगे। देन रीड द लेटर्स एंड सर्कल द सेम इन रो। जो लेटर लिखा हुआ है बच्चों ने उसी रो में उस लेटर को आइडेंटिफाई करना है और उस लेटर को वो सर्कल करेंगे। नेक्स्ट वर्कशीट है फाइंड एंड कलर द बबल्स ऑफ द गिवन साउंड्स। ये कुछ साउंड्स ऊपर दी गई हैं, बच्चों को आपने चेक करना है कि वेदर उनकी जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेटर्स है वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। तो वो बताएंगे कि ये जो लेटर्स ऊपर दिए गए हैं वो इसमें से चूज करके उनमें कलर करेंगे। Then the same practice of writing, reading and coloring of A to M letters. Write the missing letters in alphabetical order.
ये आपने करवाने मिसिंग लेटर्स बच्चों को आते हैं, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर ए के बाद क्या आता है वो बच्चे लिखेंगे इधर इन द बॉक्सेस। ये मैथ्स की वर्कशीट स्टार्ट हो गई हैं। कलर द स्क्वायर ब्लू। नाउ द शेप्स, देयर आर सम शेप्स, आइडेंटिफाई उनको करवाइएगा कि ये स्क्वायर है, सर्कल है। उसके बाद वो बच्चे उन कलर्स शेप्स को वो डिफरेंट कलर्स करेंगे कि स्क्वायर को ब्लू करेंगे, ट्रायंगल को रेड करेंगे, सर्कल ग्रीन एंड देन जो रेक्टेंगल है उसको येलो कलर करेंगे। कलर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द नंबर्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। बच्चे कलरिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू द नंबर कि कितने, हाउ मेनी नंबर्स आर दीज, 4 लिखा हुआ है तो 4 ऑब्जेक्ट्स को वो बच्चे कलर कर देंगे। इन द सेम वे जो उर्दू की वर्कशीट्स हैं इनकी बच्चों की नर्सरी क्लास की, एक वर्कशीट नंबर 15 है, नुक्ते लगाइए और रंग भरिए। चूँकि बच्चों को आइडेंटिफिकेशन है लेटर्स की उर्दू के अलिफ से लेकर ये जाला तक, तो वो बच्चों को आइडेंटिफाई है और उनको पता है कि किस लेटर के नीचे कितने नुक्ते आएंगे। वो आपने बच्चों से नुक्ते लगवा लेने। देन राइटिंग ऑफ जो उर्दू के हरूफ तहज्जी हैं बच्चों ने उसके बारे में ट्रेसिंग करनी है, लिखना है और कलरिंग करनी है इन ऑब्जेक्ट्स में। इतना डिफ़िकल्ट काम नहीं है, बच्चों को जस्ट टाइम देना पड़ता है और उनके साथ इन्वॉल्व होना पड़ता है। नेक्स्ट कम्स प्रेप क्लास। प्रेप क्लास का जो फर्स्ट वर्कशीट है कॉन्सेप्ट है बेसिकली स्काई लेटर्स एंड रूट लेटर्स। थोड़ा सा बच्चों को आपने गाइड करना है कि व्हाट आर द स्काई लेटर्स। स्काई लेटर्स वो होते हैं जो हम स्काई की आपने एग्जाम्पल देनी है कि बेटा स्काई कहाँ है, ऊपर है। बच्चे फ़ौरन बताते हैं कि स्काई तो ऊपर है, हमारे सर के ऊपर होता है स्काई, आसमान को कहते हैं। तो इस एग्जाम्पल के साथ आपने बच्चों को ये बताना कि जो ऊपर की 3 लाइंस होती हैं, इंग्लिश में 4 लाइंस हैं टोटल, ऊपर की 3 लाइंस के ऊपर जो लेटर्स लिखते हैं वो स्काई लेटर्स कहलाते हैं। तो ये बच्चे लर्न करेंगे, ब, ड, ह, फ, क, ट, ल। ये लेटर्स स्काई लेटर्स बच्चे ऊपर वाली जो 3 लाइंस पर होंगे आइडेंटिफाई करने के बाद फिर इनमें उनको वो सर्कल करेंगे, और जो रूट लेटर्स हैं नीचे वाली 3 लाइंस पर आते हैं उनको वो टिक करेंगे। अगेन नेक्स्ट कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वाउल्स। हाउ मेनी वाउल्स देयर आर बेसिकली 5 वाउल्स। बाकी जो रेस्ट ऑफ द लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो हाउ मेनी वाउल्स आर देयर, आप बच्चों को बताइएगा उनके हैंड की एग्जांपल देके, हाथ की, हाउ मेनी वाउल्स आर देयर, ए, ई, आई, ओ, यू। किसी चीज़ के साथ जब आप रिलेट कर देते हैं तो वो बच्चे एग्जांपल कभी भी नहीं भूलते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू 5 लेटर्स हैं हमारे वाउल्स। वो बच्चे लर्न करने के बाद नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, पिक्चर्स देखकर और उस वर्ड को कंप्लीट करेंगे कि कौन से वर्ड के साथ कौन सा वाउल हमने ऐड करना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो पिक्चर है वो है एप्पल और बाकी के लेटर्स लिखे गए हैं, ए वाउल मिस किया गया है, वो बच्चे यहाँ ये पुट करेंगे। देन चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द वर्ड बैंक एंड राइट द वर्ड बिलो द पिक्चर। एक वर्ड बैंक हम बच्चों को वर्ड बिल्डिंग करवाते हैं प्रेप क्लास में, फ्रॉम एवरी A to M। सारे लेटर्स के साथ हर लेटर से बच्चे 2 वर्ड्स बनाते हैं। तो यहाँ सिंपल एक प्रैक्टिस के लिए हमने एक वर्ड दिया है, बच्चे पिक्चर देख के ऊपर वर्ड बैंक है वहाँ से चूज़ करके नीचे वर्ड्स लिखेंगे और इसको लर्न भी करेंगे। देन देयर इज वर्कशीट ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी। A picture is drawn there. Students, they will choose words from here because अभी तो उनको लर्न नहीं है। बच्चे यहाँ से लर्न करेंगे, देखेंगे वर्ड और फिर उस पिक्चर में उस चीज़ को देखकर वहाँ पर वो एग्जैक्ट वर्ड लिखेंगे। आगे कलर्स की आइडेंटिफिकेशन है, डिफरेंट कलर्स हैं, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज। बच्चे उसमें कलरिंग करेंगे। मैच द शेप्स विद देयर नेम्स। शेप्स की आइडेंटिफिकेशन प्रेप क्लास के बच्चों को है, जस्ट उनको नेम्स आपने लर्न करवा के बच्चे उसको मैचिंग करेंगे। राइट काउंटिंग इन वर्ड्स। प्रेप क्लास में बल्कि नर्सरी क्लास के हम फाइनल टर्म में
काउंटिंग इन वर्ड्स स्टार्ट कर देते हैं। तो प्रेप में भी वही प्रैक्टिस है, ज़्यादा हमने डिटेल में नहीं दिया, बाकी काम बच्चे क्लासेस में आकर अंडर द सुपरविजन ऑफ टीचर करेंगे। देन द कॉन्सेप्ट, ये मैथ स्टार्ट हो गया है, सम्स ऑफ सब्ट्रैक्शन, माइनस के क्वेश्चंस हैं, आपने बच्चों के साथ बच्चों को गाइड करके ये क्वेश्चंस सम्स जो है उन्हें सॉर्ट आउट करवाने हैं। देन सम्स ऑफ एडिशन, उसके बाद हमारी उर्दू की वर्कशीट्स हैं। तस्वीर देखकर शुरू का हर्फ लिखिएगा, बच्चा पिक्चर को आइडेंटिफाई करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट पिक्चर है, ये तोता बना हुआ है, तो बच्चे ने बताना है कि ये किस हर्फ से स्टार्ट हुआ है, वो हर्फ फिर बच्चा लिखेगा तोता। आपने थोड़ा सा बच्चे के साथ वर्कआउट करना है और उसको गाइड करना है कि किस लेटर से, किस हर्फ से ये जो है लफ्ज़ शुरू हो रहा है। फिर यहाँ बच्चा क्या लिखेगा, तोए लिखेगा। Then a new concept for prep class, मुसव्वते। मोस्टली पेरेंट्स को इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि उर्दू में भी वाउल्स होते हैं। जैसे इंग्लिश में वाउल्स हमने अभी पढ़ा है, इंग्लिश में, उर्दू में भी वाउल्स होते हैं, उनको उर्दू में कहते हैं मुसव्वते। वो कौन से हैं मुसव्वते? वो 4 हैं। इंग्लिश में 5 वाउल्स हैं, उर्दू में 4 मुसव्वते हैं, अलिफ, वाव, छोटी ए और बड़ी ए। और ये इनके बगैर जो है वो अल्फाज कंप्लीट नहीं होते हैं। इसमें नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, बच्चों ने उन मुसव्वतों को जहाँ आखिर की आवाज़ पर दायरा लगाना है, जो जहाँ पर वो मुसव्वता दिया गया है, वेदर इट इज़ अलिफ है या वाव है या छोटी ए है, जो आखिरी मुसव्वता है उसको बच्चों ने सर्कल करना है। इन दिस वे वो उस चीज़ को लर्न कर लेंगे कि कितने मुसव्वते हैं और कौन कौन से हैं। उसके बाद है उर्दू गिनती, ये भी जस्ट प्रैक्टिस का काम है। बच्चों को हेल्प आउट कीजिए कि ये किस तरह से, और उनको तोड़ के जोड़ और जोड़ के तोड़ भी करना सिखाइए। इस वे में वो लफ्ज़ बनाना सीखेंगे। तो इसमें लफ्ज़ बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल है ये दोनों चीज़ें, तोड़ के जोड़ और जोड़ के तोड़। अलिफ, ये, काफ जब मिला के लिखेंगे बच्चे तो क्या बनेगा? एक। तो उर्दू में आपने इस तरह से बच्चों को गिनती लिखवानी है। देन ये बहुत इजी सी वर्कशीट्स हैं, फलों के नाम हैं। ऊपर हमने वर्ड बैंक दिया गया है, चूँकि ये प्रैक्टिस नहीं हुई है क्लासेस में अभी तक, तो बच्चों को हेल्प करने के लिए, हेल्प आउट उनके के लिए ऊपर वर्ड्स दे दिए गए हैं ताकि बच्चे वो देख कर नीचे लिखें। उसके बाद आप उनको रफ रजिस्टर्स के ऊपर प्रैक्टिस ज़रूर करवाइए घर में, ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो और वो कुछ ना कुछ लर्न करके आएँ। इन द एंड मैं यही कहूँगी कि इंशाल्लाह जैसे ही सिचुएशन बेहतर होती है, स्कूल्स विल बी ओपन इंशाल्लाह, तो बच्चों को हम ये सारी चीज़ें क्लासेस में दोबारा से सारा पढ़ाएंगे सिलेबस, और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो भी उसमें हम सोल्यूशन निकालेंगे। बच्चों के एग्ज़ाम्स भी लिए जाएंगे और सारी चीज़ें क्लास में टीचर्स करवाएंगी। तो डोंट वरी अबाउट दिस, स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ़ योर लव्ड वंस। थैंक यू सो मच।